So let us solve some multiple choice questions. So let us see first question here. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 and given by relation. This is the given relation and we have to choose the correct answer. So here what we have to do, whether given we have to check whether given relation is reflexive, then symmetric and transitive. So let us see here. देखिए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसके 1 2 3 4 के अगर डबलेट्स है हमारे पास में 1, 1 4, 4 2, 2 3, 3, तो ये इनके सभी के डबलेट्स है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है बच्चों कि यहाँ पर whether this given relation is symmetric or not। देखिए सिमेट्रिक, तो यहाँ पर 1, 2 है तो 2, होना चाहिए। तो देखिए बच्चों इधर 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है। सो 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belong to R. Therefore, given relation is not symmetric. अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है बच्चों वेदर दिस गिवन रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं देखना है। ट्रांजिटिव, तो इसमें एक एलिमेंट देखेंगे बच्चों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1, 3 एक एलिमेंट है, 1, 3, 2 देखिए यहाँ पे 1, 3 और 3, 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये हमें ये देखना है कि whether this 3, 2 element, sorry 1, 2, if 1, 3 and 3, 2 belongs to R, if it implies 1, 2 also belonging to R। देखिए ये 1, 2 जो एलिमेंट है ये रिलेशन में है या देखना है, देखिए है। So therefore we can say that given relation is transitive relation। So relation is reflexive, transitive, but not symmetric. So therefore what will be our answer? Relation is reflexive and transitive but not symmetric। तो हमारा बी आंसर आएगा इधर। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे रिलेशन दिया है, रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये a कॉमा बी is equal to b minus 2 and b is greater than 6 है। देखिए तो यहाँ पर एक 4 पेयर्स दिए हैं बच्चों, तो इसमें से b is greater than 6 इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो दिए ये तो आने वाला नहीं, बिकॉज b is less than 6 ये है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पे देखना है बच्चों, if I write here 7 समझो, b is equal to 7, 7 minus 2 that means it will be 5, तो ये is equal to 5 आ रहा है, बराबर है। तो 5, 7 एलिमेंट है क्या इधर, तो there is no 5, 7 एलिमेंट। if I take here यहाँ पे a is equal to b minus 2 है, if I take b is equal to 8 minus 2 so a is equal to 6। यहाँ पे हम लोगों को a, b पेयर में हमने b is equal to 8 लिया है, तो a is equal to 6 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी पेयर है हमारी 6, 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, C is our आंसर। यहाँ पर देखिए f is a function from R into R। तो देखिए f of x is equal to x raised to 4 है। देखिए बच्चों यहाँ पर if I take 1 and minus 1, then what will be image of 1 and minus 1? ये 1 है, क्योंकि minus 1 raised to 4 is equal to 1, 1 raised to 4 is equal to 1। So this implies this is not 1 function। ठीक है, 1 raised to 4 means 1, 2 raised to 4 means 16, ये नंबर्स है। अब if I take here minus 15 here number, तो minus 15 has
नो प्री इमेज, ये सभी रियल नंबर्स ले रहा हूं मैं यहाँ पे, -15 which is belonging to codomain of given function or given relation, it has no pre-image, so therefore given function is not onto function. So what we can say, that given function is neither 1 nor onto, we can say that. यहाँ पे f of x is equal to 3x है बच्चों, और यहाँ पे फंक्शन इज फ्रॉम r इंटू r है। तो हम लोगों को ये पहले हम लोग चेक करेंगे वेदर इट इज 1 फंक्शन और एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहां से कोई भी रियल नंबर लेते हैं, इफ आई टेक एनी रियल नंबर मीन्स इफ आई टेक एनी वैल्यू as real number and if I put here, then I will get a real number. That means every element of this domain has image in codomain, we can say that. So this implies given function is 1 function. ठीक है, given function is 1 function. Now we have to check whether this function is onto function or not. So if I take here y is equal to 3x, f of x means y. What is y means? That is the codomain, we can say that. So x is equal to y by 3. So for every value of y, means for every element of codomain, there exists a element in domain. So therefore it is onto function. It is 1 and onto function. Function is 1 onto. Here given function from r into r, be given by f of x is equal to 3 minus x cube bracket raised to 1 by 3. Then find composition of f of x. So we have to calculate बच्चों f of x calculate करें। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, f of x। तो देखिए बच्चों, दिस इज f of x निकालना है हमको। So this is equal to 3 minus f of x bracket cube bracket raised to 1 by 3. x के बदले में हम f of x रख रहे हैं। So this is equal to 3 minus f of x का मतलब है बच्चों, this is f of x, right? So I can write this as 3 minus x cube ब्रैकेट रेज टू 1 by 3 और इसका क्यूब है बच्चों ये 1 by 3, तो ये हो जाएगा। सो व्हाट विल बी दिस बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3 माइनस, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट रेज टू 1 by 3, दिस विल गेट कैंसिल बच्चों। तो ये x cube bracket raised to 1 by 3, so this will get cancelled, this is equal to x, so this will be our answer। देखिए बच्चों, given function f of x is equal to, तो इसको y बोलेंगे बच्चों, y is equal to 4x upon 3x plus 4y है बच्चों। so therefore 4, देखिए बच्चों फिर से मैं बता रहा हूँ, so let us consider this as y is equal to 4x upon 3x plus 4, तो इसको ले लेते हैं इधर। सो y इंटू 3x plus 4 इज इक्वल टू 4x है बच्चों, तो 3xy plus 4y इज इक्वल टू 4x आएगा। y minus 4x इज इक्वल टू -4y आएगा बच्चों, राइट? टेक आउट x कॉमन, 3y minus 4 is equal to -4x, तो x is equal to -4y upon 3y minus 4, तो x is equal to, नीचे से माइनस कॉमन निकालेंगे, -4 minus 3y। तो देखिए बच्चों, x is nothing but this is called f inverse of y, so this is equal to 4y upon 4 minus 3y, तो 4y
this is nothing but g of y. Okay, suppose this function is inverse of y, f of y is g of y. This is equal to 4y upon 4 minus 3y. So 4y upon 4y minus 3y. देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, if we have to calculate inverse of given function, तो given function f of x लिखना है और उसके बदले में y की वैल्यू लिखना है बच्चों। तो y is equal to इक्वेशन के बाद में x की वैल्यू in terms of y, x की वैल्यू in terms of y is nothing but inverse of given function. Statements are true or false. तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इस ऑपरेशन इज एनी, एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए आता है फॉर एवरी ए इज बिलोंगिंग टू एन। तो देखिए बच्चों, इफ आई टेक हियर स्टार इज इक्वल टू plus sign, if I take, this is a binary operation, so if I take a is equal to 1, so 1 star 1, that means 1 plus 1, this is equal to 2, that means 1 star 1 is not equal to 1. So this implies given statement is false. देखिए बच्चों, मैंने if स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, देन ये चेक करना है बच्चों। तो ये स्टार b स्टार c इज इक्वल टू, तो देखिए बच्चों यहां पर ये दिस इज कम्यूटेटिव मींस आई कैन राइट दिस इज b स्टार c स्टार a, अगेन दिस इज कम्यूटेटिव मींस आई कैन चेंज दिस इज c स्टार b स्टार a। तो देखिए बच्चों, दिस इज, ये क्या है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड इट इज राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज ट्रू। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन n डिफाइंड एज a स्टार b is equal to a cube plus b cube. Now we have to check whether this is a commutative है या नहीं है, देखते हैं बच्चों। तो a स्टार b is equal to a cube plus b cube, so I can check b star a is equal to, ये आएगा बच्चों b cube plus a cube, and b cube plus a cube can be written as a cube plus b cube because addition is commutative. This is nothing but a star b, so this implies a star b is equal to b star a, so this implies commutative. Given binary operation is commutative. अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है whether it is associative or not. देखिए a स्टार b स्टार c, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बच्चों, दिस इज ये क्यूब प्लस b स्टार c क्यूब लिख सकता हूं, दिस इज c और बच्चों a star b is equal to a cube plus b cube, so this is a cube plus this, so I can write this as a cube plus, इसका क्या आएगा बच्चों, b cube plus c cube, इसका क्यूब आएगा। अब ये एसोसिएटिव है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं अभी ये स्टार b स्टार c, तो ये क्या आएगा बच्चों, स्टार b क्यूब प्लस c क्यूब लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट क्यूब प्लस c क्यूब। तो यह इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। तो ये और ये सेम नहीं है बच्चों, दिस इज डिफरेंट। सो फ्रॉम 1 and 2 a star b star c is not equal to a star b star c. So therefore we can say that this is commutative but not associative. तो ये आंसर है हमारा डी है। So let us take question number 16 बच्चों।
What is our question? Let A is equal 1, 2, 3. The number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetry but not transitive. तो ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं ये देखना है बच्चों। हमारा जो गिवन सेट है बच्चों ये इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को एक रिलेशन बनाना है जो कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यूजिंग दिस सेट वी कैन, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कौन से एलिमेंट होना चाहिए बच्चों? 1, 1, 2, 2, 3, 3 और उसमें और क्या है कि 1, 2 और 1, 3 ये दो एलिमेंट्स होना चाहिए। तो देखिए बच्चों 1, 2 है, ये सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 1, 3 भी एलिमेंट होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों इट इज रिफ्लेक्सिव? क्यों है रिफ्लेक्सिव? बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब सिमेट्रिक क्यों है? सिमेट्रिक बोले तो कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे उसका अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो वो एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1, 1 का उल्टा करेंगे तो 1, 1 ही आएगा। उसके बाद में 2, 1 का 1, 2 है, 1, 3 का 3, 1 बोले तो इसमें कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो उसका एलिमेंट हमें मिलता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अभी ये ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे बच्चों, ये तो एलिमेंट लेंगे समझो हम लोग 2, 1 एंड 1, 3 belongs to R, but this does not imply 2, 3 belongs to R. So therefore this relation is not transitive relation नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें दूसरे जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये टोटल एलिमेंट्स कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर हम लोग इसमें 2, 3 और 3, 2 टोटल एलिमेंट्स 9 है, इनको अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। दैट यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन रिलेशन वी कैन से दैट इट विल बी एवरी यूनिवर्सल सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए बच्चों ऐसा एक ही सेट बनता है जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और जिसमें 2, 1 और 1, 3 ये दोनों भी एलिमेंट्स हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। तो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। सो व्हाट इज गिवन सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है बच्चों। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2। तो रिलेशन लिखेंगे बच्चों, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और ये 2, 1 ये एक रिलेशन हो जाएगा बच्चों। और दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन ये देखिए बच्चों यहां पर चेक कर सकते हैं हम लोग, ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। दैट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। इसमें किसी भी एलिमेंट का अगर समझो हम लोग उल्टा करते हैं, मीन्स 1, 2 का उल्टा करेंगे 2, 1 तो ये 2, 1 है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बराबर। आप देखिए बच्चों सिमेट्रिक है। और यहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ये 1, 2, 2, 1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1, 1 ये 1, 1 इधर है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों। अभी यहां पर और एक रिलेशन देखते हैं बच्चों, R इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। अब इसमें हम लोग 2, 3 एक एलिमेंट जोड़ देते हैं और 3, 2। अगर समझो हम लोग इतने ही एलिमेंट्स लेंगे तो हमको ये देखना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। देखिए बच्चों यहाँ पे 1, 2 और 2, 3 here 1, 2 और 2, 3 these are belonging to given relation और this implies ये एलिमेंट 1, 2 है या नहीं देखना है 1, 2। तो यहाँ पे 1, 2 सॉरी
ये 1,3 एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 1,3 एलिमेंट है नहीं, तो मैं अगर समझो इसमें 1,3 जोड़ देता हूं तो मुझे 3,1 भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, दिस इज द रिलेशन, वन मोर रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर विच आर रिफ्लेक्सिव, symmetric, transitive, that means equivalence relation. So there are two equivalence relations, we can say that. So therefore our answer will be, देखिए बच्चों उसके बाद में number of binary operations on the set A, B. देखिए बच्चों, definition of binary operation is a set, binary operation on set A is, it is a set of, means it is function from A cross A into A. देखिए बच्चों, ये सेट मीन्स सेट A, B, सेट A, B। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालना है। तो इससे अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्या हो जाएंगे, पहला ये हो जाएगा बच्चों A, ये B, फिर B लेंगे B, A और B, B हो जाएंगे। तो ये चार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, n is equal to 4, we can say that n is equal to 4. n is what? Number of elements. Now number of binary operation on the set, number of binary operations on the set is equal to 2 raised to n, where n is number of elements in set of binary operation. So this is 2 raised to 4. 2 raised to 4 is equal to 69. So our answer will be B.